Hello friends, welcome back to the series of lecture. I am Advocate Gaurav Singh Adana. This is the 30th lecture of the CRPC of this series. So we are continuing with the section 170 and we had seen कि 173 में तो चार्जशीट और क्लोजर रिपोर्ट दोनों लगेगी, बट क्लोजर रिपोर्ट के साथ 169 देखा जाएगा और चार्जशीट के साथ 170 विद 173 क्लॉज 2 और क्लोजर रिपोर्ट के 169 173 क्लॉज 2. So almost the intro was already done. So now without wasting the time, straight away come to the section 170. If upon an investigation under this chapter only, if upon an investigation under this chapter, it appears to the officer in charge of the police station that there is sufficient evidence or reasonable ground as aforesaid. What is the meaning of aforesaid? As aforesaid, section 169. जैसे उधर लिखा था ना, there is no reasonable ground or sufficient evidence. Here, sufficient evidence or reasonable ground as aforesaid means जैसा कि हम 169 में पढ़ चुके हैं, इस तरीके का केस नहीं है. As aforesaid इस तरीके का केस नहीं है जो हम 169 में पढ़ चुके हैं. बट कैसा केस है? द पुलिस स्टेशन दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड. केस ऐसा है कि जिसमें सफिशिएंट एविडेंस है और रीजनेबल ग्राउंड है. Such officer shall forward the accused under the custody to a magistrate empowered to take the cognizance of the offence upon a police report and to try the accused to commit him for trial. Or if the offence is bailable and the accused is able to give security, shall take security from him for his appearance before such magistrate on a date fixed and for his attendance from day to day before such magistrate until otherwise directed. So such officer shall forward the accused under custody to a magistrate. Which magistrate? Area magistrate. Empowered to take cognizance. Magistrate empowered to take cognizance means area magistrate of the offence upon a police report. So 170 में तो हम एक्यूज को प्रोड्यूस करेंगे साइमल्टेनियसली. पुलिस रिपोर्ट प्रोड्यूस करेगा जो पुलिस ऑफिसर होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन सेक्शन 173. बोथ द थिंग्स आर डन साइमल्टेनियसली. और इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेल प्रोवाइड करेंगे. एंड द एक्यूज्ड इज एबल टू गिव सिक्योरिटी, और एक्यूज्ड एबल है सिक्योरिटी देने के लिए, सिक्योरिटी वॉट एवर द कंडीशन में भी. If the offence is bailable and the accused is able to give security, shall take security from him for his appearance before such magistrate on a date fixed and for his attendance from day to day before such magistrate until otherwise directed. So what happened is, this is the FIR lodged here, then the investigation started from here, from FIR lodged. Then somewhere here the accused is arrested. Somewhere here the accused is arrested. Suppose the offense is bailable offense. अब bailable offense में ये ध्यान रखना कि पुलिस ऑफिसर जो आयु है वो 24 घंटे भी नहीं रख सकता accused को. Because if there is bailable offense, police officer has to be grant him bail. So if it is bailable offense, police officer will have to grant him bail. So somewhere here the police officer grant him bail. यहाँ पे बेल दे दी, इधर अरेस्ट किया, इधर बेल दे दी. बिकॉज द ऑफेंस इज बेलेबल. सो बेलेबल ऑफेंस है तो बेल देना पड़ेगा ना उसको. अगर नॉन बेलेबल है तब उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करोगे एंड देन यू विल नॉट प्रोवाइड हिम बेल. सो द बेलेबल ऑफेंस में जब पुलिस ऑफिसर बेल देगा उसको, तो उसमें एक्यूज से बेल बाउंड साइन करवाएंगे और विद सिक्योरिटी, और उसमें लिखा होगा दैट दिस एक्यूज विल appear before the magistrate as and when required and also on the consequent days for the purpose of trial. अब उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे ही पुलिस रिपोर्ट बना दोगे. सो द इन्वेस्टिगेशन वुड कंटिन्यू. इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगी जब तक पूरी नहीं हो जाती, कंटिन्यू करेंगे. और समवेयर हेयर यू वुड फाइल द चार्जशीट. तो इधर जरूरी नहीं है कि तुरंत उसको बेल बाउंड देने के बाद उसके पुलिस रिपोर्ट बनाना. द इन्वेस्टिगेशन स्टिल कंटिन्यू एंड समवेयर हियर द चार्जशीट इज फाइल्ड. सो जब हम ये पुलिस ऑफिसर जब चार्जशीट फाइल करेगा, देन द एक्यूज्ड एज पर द बेल बॉन्ड अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट.
सो जस्ट टू क्लैरिफाई दैट कि बेलेबल ऑफेंस में ये जरूरी नहीं है चार्जशीट फाइल करते टाइम उसको बेल दो। जब भी गिरफ्तार होगा जो एक्यूज्ड होगा तभी आपको बेल देना पड़ेगा। अब इसमें दो चीज हो सकती हैं। हियर आफ्टर कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन इन द बेलेबल ऑफेंस, either the police officer investigating officer file the charge sheet or he would file the closure report. अगर चार्ज शीट फाइल करता है तो एज पर द बेल बॉन्ड द accused has to appear on that date, but if the closure report is filed by the police officer then there is no need to the appearance of the accused. but उधर भी एक सिचुएशन अराइज होती है। अब दो सिचुएशन हो गई। नेक्स्ट सिचुएशन में क्लोजर रिपोर्ट में भी एक और सिचुएशन अराइज होती है दैट ऑन द क्लोजर रिपोर्ट अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं है, because magistrate is not bound by the closure report of the police officer and magistrate is not satisfied by the closure report of the police officer and he want to take the cognizance, then he would give a date. क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट के दिन तो वो एक्यूज्ड आया नहीं, अपीयर नहीं हुआ, he would give a date on that date and in the meanwhile the order would pass to the accused to appear before the magistrate on the next date. मजिस्ट्रेट नेक्स्ट डेट देगा, उसी बीच में एक ऑर्डर पास होगा एक्यूज्ड को अपीयर होने के लिए बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑन द नेक्स्ट डेट। नाउ द सेकंड सिचुएशन इज द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड द मजिस्ट्रेट गिवन द बेल। सो बेल जब देगा मजिस्ट्रेट तो उसमें भी एक कंडीशन होगा बेल बॉन्ड में, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ही हैज टू प्रोड्यूस बिफोर द magistrate. So the meaning of the bail bond is that whether in bailable offense or non-bailable offense, when the accused has to be present as and when required by the magistrate. तो accused का appear होना पड़ेगा जब magistrate चाहे, उसको जरूरत हो। Now let's see the another situation in the non-bailable offense. Non-bailable case है and the accused was kept in custody. Then what will be the police officer do in that situation? Then the police officer in that case obtained the production warrant, obtained the custody of the accused from the jail or wherever he is, and then he would produce him along with the charge sheet. So what was the situation? Somewhere here the FIR was done. यहाँ पे एक्यूज को अरेस्ट किया, अरेस्ट के बाद उसको पुलिस कस्टडी दी इधर तक, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में है पुलिस ये एक्यूज्ड। अब नाउ हियर द चार्ज शीट वुड बी फाइल्ड, चार्ज शीट फाइल हो गई। देन व्हाट वुड द पुलिस ऑफिसर डू? ही वुड take the production warrant and then he would produce the accused before the magistrate along with the charge sheet. Now let's see the another situation. FIR हुआ, अरेस्ट हुआ, पुलिस कस्टडी हो गई, जुडिशियल कस्टडी में। now somewhere here the accused would get the bail, whether it be a default bail or regular bail. मान लीजिए regular bail पे रहा है। So obviously in this situation when the charge sheet was filed by the police officer, he is not in the custody. Then what would be the IO do? Police officer would do. So in this kind of situation, as per the bond, क्योंकि बेल के साथ बेल बॉन्ड भरे जाते हैं ना, as per the bail bond, the accused has to appear before the judicial magistrate. So ये दो तीन सिचुएशन इसमें बताई हैं मैंने और प्रीवियस वाले में बताई हैं, इनको सेपरेटली एक पैराफ्रेजिंग कर लेना, अदरवाइज आई हैव टॉट यू इन द डायग्रामेटिकल फॉर्म, और इसको बार बार रिवाइज करना। सो इन दिस सिचुएशन जब भी अपीयर कराएंगे एक्यूज्ड को, दैट वुड बी द प्रोडक्शन अंडर सेक्शन 170, चाहे बेल पर है वो या फिर जुडिशियल कस्टडी में प्रोडक्शन वारंट लेकर आ रहे हैं और प्रोड्यूस कराएंगे, दैट वुड बी सिचुएशन ऑफ सेक्शन 170 में प्रोड्यूस कराएंगे उसको एक्यूज्ड को। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिस दिन प्रोड्यूस करा रहे हैं नहीं होता है, एक्यूज्ड नहीं है, बेल पर है, तो एट मे अलाउ द to file the charge sheet and fix another date for the production of the accused, or he may give date on the same date the charge sheet or would be filed along with the accused. Now let's see the second clause. When the officer in charge of a police station forwards an accused person to a magistrate or takes security for his appearance before such magistrate under this section, he shall send to such magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him, and shall require the complainant, if any, complainant means here informant, shall require the
complainant if any, and so many of the person who appear to such officer to be acquainted with the facts and circumstances of the case as he may think necessary to execute a bond to appear before the magistrate, as thereby directed and prosecute or give evidence as the case may be in the matter of the charge against the accused. So what they are talking about? They are talking about two things here. One is when the police officer he decide to file the charge sheet, he make the accused appear before the magistrate. So accused दो जगह हो सकता है, या तो कस्टडी में, तो accused अगर कस्टडी में होगा तो उसको वहां से प्रोड्यूस करेगा, या फिर वो बेल पे होगा, और बेल पे होगा तो बेल बॉन्ड भरा रखा होगा पुलिस ऑफिसर ने उससे, दैट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द मजिस्ट्रेट ही मस्ट हैव टू appear before जुडिशियल मजिस्ट्रेट. अब साथ में तो एक एक्यूज्ड तो प्रोड्यूस हो गया इस तरीके से, चाहे बेल पर है या फिर कस्टडी में, ये दोनों तरीके से हो गया. अब उसके साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा वो पुलिस ऑफिसर? कोई मर्डर वेपन वगैरह है, अब चाकू भी हो सकता है, बंदूक हो सकती है, डंडा हो सकता है, वॉट एवर द मर्डर वेपन विद, और अदर आर्टिकल्स में अदर डॉक्यूमेंट वगैरह, वॉट एवर द पुलिस ऑफिसर थिंग्स दैट इट वुड बी प्रोड्यूस्ड, उसको प्रोड्यूस करेगा along with the accused. Plus they are saying that the informant and the witnesses, because they are has to be appear before the magistrate in the trial. So the police officer would take bond from them also, that as and when required they would appear for the purpose of trial. Informant से और witness से भी the police officer would take the bond, और वो अगर नहीं appear होते हैं तो पुलिस ऑफिसर उनको अरेस्ट भी करवा सकता है. वो आगे लिखा है. So let's see third clause. If the court of the chief judicial magistrate is mentioned in the bond, such court shall be held to include any court to which such magistrate may refer the case for inquiry or trial, provided reasonable notice of such reference is given to such complainant or persons. सो बेल बॉन्ड में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपको अपीयर होना पड़ेगा, पर जरूरी नहीं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हर केस को ट्राई करे. वो मार्क कर सकता है किसी अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को और वो ट्राई करेगा. तो उसको वहां पर किसको अपीयर, कहाँ अपीयर होना पड़ेगा? टू दैट मजिस्ट्रेट वेयर द केस वॉज मार्क. बट वो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर दैट रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा. उसको कैसे पता पड़ेगा कि मेरे को कहाँ अपीयर होना पड़ा? उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा. सच रेफरेंस इज गिवन टू सच कंप्लेंट और पर्सन्स. ऐसे कंप्लेनेंट को और पर्सन्स को नोटिस देना पड़ेगा. पर्सन्स में कौन? विटनेसेस वगैरह और अदर पर्सन्स, दैट यू हैव टू अपीयर बिफोर द सच एंड सच कोर्ट. क्योंकि अदरवाइज वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का है, जब बेल बॉन्ड के अनुसार तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो जाएगा, और कोर्ट केस चल रहा किसी और कोर्ट के सामने, मार्क हो गया. Now see clause 4. The officer in whose presence the bond is executed shall deliver a copy thereof to one of the persons who executed it, and shall then send to the magistrate the original with his report. तो जिसका बॉन्ड साइन कराया है ऑफिसर ने, रिपोर्ट के साथ वो मजिस्ट्रेट के पास ओरिजिनल बॉन्ड भेज दिया जाएगा पुलिस ऑफिसर द्वारा. और ऑफिसर इन हुज प्रेजेंस द बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड शैल डिलीवर, और जो ऑफिसर जिसके सामने बॉन्ड एग्जीक्यूट हुए हैं हमारे, वो डिलीवर करेगा एक कॉपी किसको? द पर्सन हु एग्जीक्यूटेड इट, जिससे बॉन्ड भराए गए, और ओरिजिनल मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा दिए जाएंगे विद द रिपोर्ट. सो ऑल द क्लॉजेज आर सिंपल, बट द फर्स्ट मेन क्लॉज इज फर्स्ट वन, in which it is written whenever the charge sheet was filed, the accused has to be present before the judicial magistrate. अगर बेल पे था तो बॉन्ड के थ्रू अपीयर होगा, बॉन्ड के थ्रू, और अगर कस्टडी में था तो प्रोटेक्शन वारंट के थ्रू अपीयर होगा. दूसरा पॉइंट था द पुलिस ऑफिसर मस्ट हैव टू टेक बॉन्ड फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट एंड विटनेसेस ऑल्सो, प्लस ही हैज टू प्रोड्यूस एनी मटेरियल things along with the accused. And another point is, if the CGM is mentioned in the bond, then it does not mean only the CGM, it would be any other magistrate in whose court the case is transferred or assigned.
एंड द लास्ट में जो भी बॉन्ड आपने साइन करवाया, कॉपी ऑफ द बॉन्ड इज गिवन टू वन हु हैज एक्सिक्यूटेड इट, वेदर इट इज विटनेस, कंप्लेनेंट, एक्सेट्रा, एंड द ओरिजिनल कॉपी टू बी सेंट टू द मजिस्ट्रेट। एक्यूज को भी कॉपी मिलेगा। सो हियर द सेक्शन 170 ओवर्स। नाउ वी स्टार्ट सेक्शन 171। व्हाट द 171 सेज? 171 सेज दैट, मान लो एक कंप्लेनेंट है, उसको कोर्ट में अपीयर होना है एंड पुलिस ऑफिसर भी कोर्ट जा रहा है ऑन दैट डे। इज द कंप्लेनेंट बाउंड टू accompany the police officer? Can the police officer arrest the complainant and take him to the court? The answer is no. But if he does not appear on to the court as and when required by the magistrate, required by the court, then what will be the consequence? Then they would be arrested. तब उनको अरेस्ट किया जा सकता है upon the order of the magistrate. That is what 171 talks about. No complainant or witness on his way to any court shall be required to accompany a police officer, or shall be subject to unnecessary restraint or inconvenience, or required to give any security for his appearance other than his own bond. So it is very obvious कि कोई witness या complainant है तो they are independent ना, तो they are not accused. Complainant और witnesses are not the accused, they are independent persons. तो उनको गिरफ्तार करके पुलिस ऑफिसर अपने साथ नहीं ले जाएगा. They have to appear, but as per the bond by his own. वो अपने आप से आएंगे कोर्ट में as per the bond. But if they not appear, then what? Then it is given in the proviso. Provided that if any complainant or witness refuses to attend or to execute a bond, दो कंडीशन हो गई, एक तो अटेंड नहीं कर रहा या फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट करने से भी मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है. refuse to attend and refuses to execute a bond as directed in section 170. The officer in charge of the police station may forward him in the custody to the magistrate, who may detain him in the custody until, कब तक, he executes such bond, or until the hearing, it is discretionary, or until the hearing of the case is completed. So it looks like कि अगर कोई बॉन्ड नहीं भरता है तो उसको मजिस्ट्रेट बाउंड करने तक साइन कस्टडी में रख सकता है या फिर हियरिंग कंप्लीट ना होने तक. ये डिस्क्रिशनरी लगता है बट इट शुड बी रीड सेपरेटली. अगर कोई बॉन्ड नहीं भरता है, उधर मना कर देता है, तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, कस्टडी में ले जाएगा और तब तक कस्टडी में रखा जाएगा जब तक वो बॉन्ड प्रोड्यूस भर ना दे. ही एग्जीक्यूट द बॉन्ड. सेकंड सिचुएशन होती है हमारी, उसने बॉन्ड भर दिया, पुलिस ऑफिसर के सामने बॉन्ड भर दिया, बट ही इज नॉट प्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द मजिस्ट्रेट. तब उसको अरेस्ट किया जाएगा और मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा और उसको कस्टडी में रखा जाएगा until the hearing of the case is completed. So this is the mainly section says, but practically इतनी हार्श नहीं होती कोर्ट, और उसमें अगर कोई एक्सक्यूजेज वगैरह है विटनेसेस वगैरह के और उनके, तो उनको भी कंसीडर किया जाता है, तो उनको टाइम दिया जाता है. So one point you have to keep in mind that what we are discussing now is where the investigation gets over. बट हालांकि 159 में इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी नहीं है, ओवर होना जरूरी नहीं है, बट वन वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर. अब या तो यू आर फाइलिंग द क्लोजर रिपोर्ट और यू विल बी फाइलिंग द चार्जशीट. अब जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेंगे देन द 169 वुड अप्लाई, अर्लियर आल्सो 169 अप्लाइड, बट जब चार्जशीट फाइल करेंगे देन द एक्यूज्ड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड. उसके लिए देन 170 इज देयर. साथ में जो कंप्लेनेंट और विटनेसेस उनसे भी बॉन्ड साइन करवा हुए एंड दे मस्ट बी देयर एट द स्टेज ऑफ ट्रायल टू गिव द एविडेंसेस, एंड इफ दे डू नॉट अपीयर और दे रिफ्यूज टू फिल द बॉन्ड, दे कैन बी अरेस्टेड एंड कॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट हु विल बाइंड देम टू साइन द बॉन्ड. और अगर बॉन्ड के बाद भी अपीयर नहीं हो रहे, बॉन्ड भरने के बाद भी, देन द मजिस्ट्रेट कीप देम इन कस्टडी until the trial is completed. So इस प्रकार से सेक्शन 170 और 171 हमारा समराइज होता है. So up to now what we had seen, जब
हमारे क्या कहते हैं प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, देयर कैन बी FIR और देयर कैन बी NCR। अगर NCR है तो देन देयर मस्ट बी एन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, देन यू वुड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। इट कैन बी FIR और इट इज ऑर्डर अंडर 156 क्लॉज 3 ऑल्सो। मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में 155 क्लॉज 2 में इन्वेस्टिगेशन के लिए। FIR में द इन्वेस्टिगेशन वुड स्टार्ट, बट उससे पहले यू हैज टू सेंड द ऑकरेंस रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट एंड दैट वुड बी इन सेक्शन 157, and where you are not investigating, then it would be under 159. After that the investigation would start, and investigation में you would go through spot and do etc other things, you would do the investigation। और इस investigation में एक पहला है search and seizure, that you have to see yourself, क्योंकि इसमें इतना कुछ है नहीं। इसमें the police officer could search and seize the place of accused also। then investigation में ये देखा था कि if अगर rape victim है तो इसका medical examination 164A में होगा। then we had seen for recording of statements 161 apply, and then 162 apply, otherwise also 162 apply। then the guidelines given in 163 is to be taken care of। अगर आपको एग्जामिन करना है 160 का ऑर्डर भी कर सकते हैं। टू मेक द एक्यूज्ड अपीयर और द विटनेस अपीयर बिफोर द पुलिस स्टेशन, यू कैन मेक द अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड। अब देन अरेस्ट कर लिया तो उसका लिए प्रोविजन 41 to 68A वो अभी करेंगे हम। बट देन इफ अरेस्ट कर लिया 57 वाला पॉइंट सेफ गार्ड एंड ऑल, देन इट कम्स टू 15 days पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड की 15 days की मिल सकती है। देन talk about the default bail 60 or 90 days, so up to here the investigation is going on। so ये सारी चीज़ें एक्यूज से पूछताछ करना, that could be parallelly with the search seizure और जो अदर एक्सपर्ट एविडेंस वगैरह वो आ रहे हैं सब इन्वेस्टिगेशन में वो पैरेलली चल सकते हैं। फिर उसके बाद एक्यूज could be relieved on under 169 the police officer thinks that he is innocent। दूसरी तरफ एक्यूज के पास ये भी राइट है, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो बेल बाउंड देकर बेल पे छूट जाए, और अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तब भी रेगुलर बेल एप्लीकेशन मूव करके 437 या 439 में छूट सकता है। एंड ऑल दिस थिंग वुड गो ऑन पैरेलली। तो ये सारा हमको एक साथ पढ़ना पड़ेगा और एक साथ कम्प्रीहेंसिव रिवीजन में हमको आना चाहिए, तभी हम सोच सकते हैं कि हमने ढंग से रिवीजन किया है। Then we had seen at the completion of investigation the police report is filed। police report हमारी closure report भी हो सकती है, चार्ज शीट भी हो सकती है। and इस स्टेज में when the charge sheet is filed then 170 would apply, and if it may be closer then at the earlier stage when the earlier only the accused would be relieved under 169। then we had seen that the magistrate is not bound by the closure report। despite the closure report magistrate take the matter on cognizance। then we had seen that in जैसे ही हमारा FIR होगा या फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा then the case diary must be prepared, और वो 172 में है। and if the dead body is found then the inquest proceedings must be conducted। वो 174 से लेकर 76 तक हम पढ़ेंगे, वो भी इन्वेस्टिगेशन का ही एक पार्ट है, वो हम देखेंगे अभी लेटर ऑन। सो जो मेन टॉपिक अब हमारे रह गए, अरेस्ट रह गया, बेल रह गया, पुलिस रिपोर्ट रह गया। पुलिस रिपोर्ट में पर हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ लिखनी होंगी पुलिस ऑफिसर को। पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट या नहीं लेगा, अगर नहीं लेता तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल हो सकती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज 173, दैट इज पुलिस रिपोर्ट। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स? अरेस्ट है, बेल है, कंप्लेंट, कॉग्निजेंस, इशू प्रोसेस, मेंटेनेंस, ज्यूरिडिक्शन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चार्ज। ओके, और जो मेंटेनेंस है इसमें अब जो करता है फीमेल भी कर दी गई है, फीमेल। वैसे तो हम हिंदू सक्सेशन में देखेंगे तो फीमेल को भी करता डिक्लेयर कर दिया गया है। इस पर जजमेंट आ गया है एक सुप्रीम कोर्ट का। सो जजमेंट में वो कहा गया है कि लिटरल इंटरप्रिटेशन किया गया ना कि परपसिव इंटरप्रिटेशन, जिसमें कहा गया है कि ऑल द डायमेंशंस बाय विच द मेल को-पार्टनर इज सीन in the same way
द फीमेल इज टू बी सीन, और उसको वो सारे राइट होंगे जो मेल को रहेंगे, क्योंकि शी वाज आल्सो ए को-पार्टनर. So thank you guys for watching this lecture. We would continue section 173 in next lecture.